So today is anatomy day, and we are going to study histology. Histology of the structures of the eye. And there are two important slides. There are two important slides which you have to study for the exam. There are multiple structures, but there are two important slides, and those slides are of cornea and retina. Cornea and retina, which are important for your exam. So first we will concentrate on that. जो हमारे आँखों का जो white part है, that is sclera. The white part of the eye, that is sclera. कुछ लोगों का वो लाल होता है जब वो गुस्सा करते हैं, और कुछ लोग जो उनका कंटिन्यूसली लाल रहता है, बट अदरवाइज उसका नॉर्मल कलर वाइट है और वो ओपेक होता है. बट दैट बिकम्स ब्लैक. मतलब appears black. That becomes transparent rather. That becomes transparent when it is that round thing in the eyeball is cornea, because it is transparent. Or that color is because of the color of the iris. Color of the iris. Some people iris is black. Some people it is brown. Some people it can be blue, it can be grey, it can be green, or as per the color of the external lens you have put. So external lens also changes the color. Okay. Naturally, some people have that blue color, and people desire that color, blue color ke eyes. Okay. So all that iris is seen because the cornea is transparent. Some important facts about cornea which you should know at the outset, that cornea is avascular. Avascular. No blood supply to the cornea. And that is the reason corneal transplant is very easily possible. ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल बिकॉज उसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं है, तो रिजेक्शन वगैरह का कुछ स्कोप नहीं. इट इज बट देन अवैस्कुलेटेड, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एक्वियस ह्यूमर से, फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई, एंड ऑल्सो द टियर फिल्म फ्रॉम द कंजंक्टिवा. सो इट हैज फॉलोइंग लेयर्स. द फर्स्ट लेयर, layer number 1. Okay, then there is layer number 2, then there is layer number 3, then there is layer number 4, and then there is layer number 5. ये था क्या 12th स्टैंडर्ड में आपको? हाँ था कि नहीं था? या था या आप भूल गए? या था आपको याद है? या था कि नहीं था यही याद नहीं है? Okay, so first is epithelium. Epithelium is the first layer. Epithelium. So what epithelium? Keratinized कभी नहीं होता है, खाली स्किन में केराटिन है. Stratified squamous non keratinized. और जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स होते हैं ना, उनको ऐसा माइक्रोविलाइज ऐसा कुछ होता है, प्रोसेसेस. क्यों होता है? नहीं, टू रिटेन द ट्रियर्स. उल्टा, एग्जैक्टली आपने जो बोला उसके उल्टा. जब स्पीड ब्रेकर होता है तो स्पीड कम हो जाता है, तो ये बिकॉज ऑफ दिस microvilli like process, the tear film which is coming down is retained.
it moves slowly. From that tear also it get nourishment. So first layer is stratified squamous non-keratinized epithelium. A, B, C, D. B is Bowman's membrane, D is Descemet's membrane. Bowman's membrane. Okay? Descemet's membrane. And 5 is endothelium. It is single layered cuboidal cells. 5 is endothelium. So starts from epithelium, ends in endothelium. A, B, C, D, E. E is endothelium. B and D, Bowman's membrane, Descemet's membrane. और बीच में जो है C, A, B, C, स्ट्रोमा. स्ट्रोमा है, C का स्ट्रोमा. Stroma. Now this stroma is made up of collagen fibers which run at obtuse angles to each other. There is collagen fibers and then there is ground substance. Collagen fibers and ground substance which is made up of keratin sulfate, okay, and then there is a substance called as crystalline. Now the question that is asked in the exam is why cornea is transparent. Why it is transparent? It is transparent because, बोलो, बड़ा आवाज कर रहे थे आप लोग. Refractive index of the collagen fibers and matrix is same is one reason. Another reason is fibers, they run at obtuse angles to each other. Okay, if they would have been crisscrossing each other at right angles, it would not go in the. And presence of this substance called as crystalline, which is there in the lens, which is there in the cornea, which makes it transparent. So 2-3 reasons why cornea is. Fourth reason, it is avascular. उसके अंदर blood vessels रहते थे तो हमको वो blood vessels दिखते थे. बराबर है कि उसमें से बहने वाला खून भी हमको दिखता था 24 घंटे. So that is another reason. It is avascular and that also makes it transparent. But it is very rich in nerve supply. So non-myelinated nerves are there. And therefore cornea पे कुछ foreign body अगर अटकता है यहाँ पे, नॉर्मली हमारे आँख में कुछ भी जाता है ना वो कंजंक्टिवा पे अटकता है, फिर अपन पानी लगाते हैं, ये करते हो करते हो, निकल जाता है. बट अगर नहीं निकल रहा है एंड देर इज कंटिन्यूअस वाटरिंग, दैट मीन्स दैट फॉरेन बॉडी इज ऑन cornea. It has to be very gently taken out in the operation theatre below optical microscope. अगर ज्यादा यहाँ पे कुछ किया so corneal epithelium when it regenerates, rather it doesn't regenerate so nicely and that creates a scar. तो कुछ आंखों, लोगों के आंखों के ऊपर ऐसा व्हाइट कलर का स्कार आपको दिखेगा, कुछ इंजरी हुआ है. So doctors, ophthalmologists have to be very careful. नहीं तो वो आदमी आपका बदनामी का ब्रांड एम्बेसडर बनता है. ओके, आपका नाम क्या है? स्वाति. तो अगर मैं डॉक्टर स्वाति के पास जाता हूँ, डॉक्टर स्वाति ऑप्थेल्मिक सर्जन है और उसने खरड़ा
स्क्रैप किया, प्रेम से नहीं निकाला उसको। तो फिर डॉक्टर स्वाति को बदनाम करने के लिए मैं जिंदगी भर कोई भी, अरे अरे भोसले तेरे हाथ में क्या है, अरे वो किधर रहते तू, वो मलाड में डॉक्टर स्वाति है ना, मेरे आँख में कुछ गया तो मैं उसके पास गया, उसने ना ऐसा ऐसा, वो जाने का नहीं है उसके पास। चर्च गेट से मलाड ट्रेन में मैं बैठ के ट्रैवल करेंगे, जो भी मलाड स्टेशन, अरे भाई साहब आपके हाथ में क्या है, वो ये मलाड ईस्ट वेस्ट का है, मलाड ईस्ट में है ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वाति, वो उसने मेरे आँख को ऐसा परमानेंट हो गया, देखो ना जिंदगी भर के लिए, जाने का नहीं है उसके पास, तो ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए इट हैज टू, और जब आपके लाइफ में ये आ जाएगा कभी, तो अगर वो constant watering pain because it is very nervous issue, so you will have to ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बार बार याद दिलाने का, बाबा एनाटॉमी याद है तुमको, कॉर्निया पे है, प्रेम से करो नहीं तो क्या हो जाएगा, स्कार, जैसे कि भोसले सर के इस पे हुआ था। क्यों हुआ था, बिकॉज डॉक्टर स्वाति ने कहाँ पे, मलाड ईस्ट। ओके, तो दैट केयर यू हैव टू टेक। तो ये आपको स्टोरी तो मैं ऐसे ही बताया, बट ये आपके डेंटल इसमें भी हो जाता है, किसी का दांत आपने तोड़ा, वो भी आगे का, तो हर बार वो स्माइल करेगा, अरे क्या हो गया तेरे दांत को, ओ डॉक्टर क्या नाम, कहाँ रहते तुम, ओ बुल्ढाना, बॉम्बे के कौन है, साई शेट्टी, हाँ तू बॉम्बे के, हाँ अमरनाथ, वो अमरनाथ में है ना डॉक्टर, क्या नाम, प्रिंस, उनके पास गया था, तो जो उनको समझा ही नहीं, और आप फिर दांत तो तोड़ दी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका कोई ऐसा एम्बेसडर नहीं बने। द नेक्स्ट इज, सो ये स्लाइड आपको समझा, कॉर्निया का 5 लेयर्स था, कौन सा था, एपिथेलियम, Bowman's membrane, stroma, basement membrane and endothelium is cuboidal, single layered. Bowman's membrane and basement membrane are made up of collagen. Stroma जो था, it is made up of collagen fibers which run at obtuse angle to each other, lie in the ground substance where there is keratin sulfate, crystalline, a protein called as crystalline or protein, and that makes it transparent. एक मिनट गर्म आगे ना, पॉज हो गया ना। So the next slide which you are going to study is of retina. Retina has many layers. ये आपका टिपिकल स्टाइल रहता है ना कि आंसर करने के लिए जब आपको आता नहीं तो, retina is, describe retina sir, it has many layers. Retina is very important structure in the body. It is found in the eye. It is important for our vision. उसके अलावा आपको कुछ और मालूम है, हाँ बोल, 10 बोल। तो जो फर्स्ट लेयर है, वी आर गोइंग फ्रॉम आउट टू इन, outside layers to inner layers. So outermost layer is pigment layer. Pigment layer. Hey Bhanu, outermost layer is the pigment layer.
पिगमेंट। तो पिगमेंट लेयर का फंक्शन क्या है? क्या बात है, क्या बात है। एटलीस्ट तुम लोग ने कुछ गलत तो बोला तो मैं आपको कुछ नया ज्ञान दे सकूं। पिगमेंट एब्सॉर्ब्स लाइट and prevents its reflection and refraction inside the eyeball। देखो ये आपका आईबॉल है, तो इसमें जो पिगमेंट जो भी ये आएगा लाइट, पिगमेंट लेयर इसको एब्सॉर्ब करते हैं। अगर वो नहीं एब्सॉर्ब करेगा तो ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर। पिगमेंट लेयर prevents the reflection and refraction of the light rays। दूसरा, it provides nourishment to the rods and cones also। फिर layer of rods and cones। ओके, तो हमारे cones है और रॉड से। तो ये ऐसा क्यों ड्रॉ किया है मैंने? रॉड और कोन का स्ट्रक्चर क्या रहता है? हाँ, लाइक अ कोन। सो इसको ये जो उनका स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं आउटर सेगमेंट, इसको बोलते हैं इनर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट। आउटर सेगमेंट में वो रोडोप्सिन आइडोप्सिन होता है। रॉड्स में होता है रोडोप्सिन, कोन्स में होता है आइडोप्सिन। रॉड्स आर देयर throughout the eyeball सब जगह पे, and cones they are most there in the fovea। cones are in the fovea। cones are for acuity of vision, rods are for vision in the dim light। dim light। तो पिक्चर देखते हैं आप लोग थिएटर में जाके, तो रॉड्स पिक्चर के थिएटर के अंदर जाते थोड़ा टाइम लगता है ना उसको एकोमोडेशन होने को, एक्लिमेटाइज होने को, बिकॉज सडनली अंधेरे में जाते हैं आप, बराबर है। दो दरवाजे के बाहर तो प्रकाश था, अंदर लोग आपको पूछे भाई पॉपकॉर्न ये वो, और सडनली अंदर, सो द आइरिस यू नो इट बिकम्स डायलेटेड, अलाउ मोर रेज, फिर रोडोप्सिन प्रोडक्शन ये वो, फिर वो पिक्चर देख के आप सडनली दोपहर का 12 का 3 पिक्चर देख के जब बाहर आते हैं तो बिकॉज आपका आइरिस ऐसा हो गया है और उसमें से सारी सनरेज अंदर जा रहे, तो आइरिस को कंस्ट्रिक्ट होके छोटा होने को जो टाइम लगता है उसमें, वो तो रोज सुबह भी होता है आपको जब आपकी माँ लाइट लगाती है, बराबर है नहीं? पूरा आपका प्यूपिल डायलेटेड रहता है और फिर सडनली लाइट लगा, तो उसमें टेक्निक क्या रहता है? आंख बंद रखो, इनर सेगमेंट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये होता है न्यूक्लियाई, फिर न्यूक्लियाई। So this layer is called as outer nuclear layer। Outer nuclear layer। What is outer nuclear layer? Nuclei of rods and cones। Nuclei of rods and cones। फिर ये आगे जाते हैं, हाँ सपोज ये कोन है, ये रॉड है, हाँ तो उनका नीचे कोन पेडिकल बोलते हैं इसको। फिर they open up to get synapsed, to form synapse। उसमें भी ऐसा रहता है, एक 1-to-1 कनेक्शन वाले रहता है, एक मल्टी टू वन, मतलब
अभी ये साइनेप्स किसके साथ होता है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ये लेयर को हम बाद में पढ़ते हैं। इसके बाद जो इनर न्यूक्लियर लेयर होता है, इनर न्यूक्लियर, उसमें होता है बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स, उनके डेंड्राइट्स ऊपर जाते हैं और उनके एक्सॉन्स नीचे जाते हैं। ओके Is it clear? Bipolar cells. So this inner nuclear layer is made up of bipolar cells. इसके अलावा और कोई सेल्स होता है वहां पे, आपने नाम सुना है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। और हाँ, उसके अलावा होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स जो यहाँ पे जाते हैं, और एमेक्राइन सेल्स जो यहाँ पे जाते हैं। सो इनर न्यूक्लियर लेयर इज मेड अप ऑफ 3 cells. What are they? 3 cell types: bipolar cells, horizontal cells and amacrine cells. Horizontal cells send their nerve fibers to outer plexiform layer. So ये जो layer है, this is called as outer plexiform layer. आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, यहाँ पे आते हैं रॉड्स एंड कोन्स का लोअर एंड विथ साइनेप्सेस विथ डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर एंड फाइबर्स, नर्व फाइबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स. ओके, काय तीनों सेल के फाइबर्स जहाँ पे साइनेप्स होते हैं, दैट इज आउटर प्लेक्सिफॉर्म. रॉड्स एंड कोन्स, हॉरिजॉन्टल एंड बाइपोलर, ये तीनों के जहां पे होते हैं दैट इज आउटर प्लेक्सिफॉर्म. एमेक्राइन के वहां नहीं जाते. अभी बाइपोलर का एक्सॉन, बाइपोलर का एक्सॉन, एमेक्राइन के नर्व फाइबर्स और यहाँ पे जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं, सो दैट इज द गैंग्लियन सेल लेयर. इसके बीच में और एक सेल लेयर है, रुको, गैंग्लियन सेल लेयर. गैंग्लियन सेल लेयर के डेंड्राइट्स ऊपर जाते हैं. गैंग्लियन सेल लेयर के डेंड्राइट्स ऊपर जाते हैं. ओके, वो साइनेप्स करते हैं एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर एंड फाइबर्स, नर्व फाइबर्स ऑफ एमेक्राइन सेल्स. ये सब मिलके इनर प्लेक्सिफॉर्म. और फिर इस गैंग्लियन सेल लेयर के जो एक्सॉन्स है, दे फॉर्म द ऑप्टिक नर्व. और वो ऑप्टिक नर्व एंट्रेंस बोलते हैं, एक्चुअली एंट्रेंस गलत शब्द है. ऑप्टिक नर्व एग्जिट पॉइंट. ऑप्टिक नर्व निकल जाती है और जिस पॉइंट से निकलते हैं वहां पे रॉड्स और कोन्स कुछ नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. सो ड्राइविंग करते समय कभी कभी आप एक्सपीरियंस करते हो ब्लाइंड स्पॉट. ड्राइविंग करते समय कभी कभी ऐसा दिखता नहीं पीछे का व्हीकल, बिकॉज इट इज एट द ब्लाइंड स्पॉट. Okay, so let's come with the layers of retina. Outermost layer is pigment layer. Function: absorb excess light, prevent the refraction and reflection inside the eyeball. Then is layer of rods and cones. उसमें outer and inner segment of rod cells होते हैं.
Then is आउटर न्यूक्लियर लेयर व न्यूक्लियर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. इसके बीच में दो मेम्ब्रेन्स भी होते हैं, आउटर लिमिटिंग इनर लिमिटिंग, वो मैंने बताया नहीं. देन द रॉड्स इनर प्लेक्सिफॉर्म, जिसमें रॉड्स साइनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स. Then is inner nuclear layer where there is bipolar cells, horizontal cells and amacrine cells. Then is inner plexiform where ganglion cells का dendrites, bipolar के axons और amacrine cells. ये होता है inner plexiform. Then is ganglion and then there is optic nerve. इसके अलावा there are some more things in the eye, जैसे कि eyelid है. eyelid में भी मसल होता है, आगे के साइड तो स्किन होती है. आई लैशेस मतलब वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स भी होंगे. जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड है वहाँ पे वो ग्लैंड ब्लॉक भी हो सकता है. तो जब आप एग्जाम के पहले कम सोते हो और फिर यहाँ पे क्या होता है, हाँ क्या डार्क सर्कल है क्या? तुम लोग को डार्क सर्कल का पड़ा है? मैं कुछ मेडिकल कंडीशन बता रहा हूँ. यहाँ पे एक सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक होता है, स्वेलिंग आ जाता है. बचपन में कभी हुआ था ना, मुझको हुआ था बोल रही हूँ. फिर वो पकता है, फिर फूटता है, फिर उसके ऊपर मलहम बिलम लगाना पड़ता है. हीट, हम लोग बोलते हैं हीट बढ़ गया बॉडी का. एग्जाम है, आप स्वीट पे स्वीट खा रहे हैं और कम सो रहे हैं तो हीट बढ़ के वो हो जाता है. मराठी में उसको रांजनवाड़ी बोलते हैं, रांजनवाड़ी. ओके, सो मल्टीपल थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस ग्लैंड्स. यहाँ पे मसल होता है लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस. अरे ये और डायफ्राम ऑर्बिलिस फिनोमिनन, इनको एक्सेसिव सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है. इसके लिए ये लोग थकते नहीं, दिन भर ऐसा खुला रहता है. खाली लेक्चर के टाइम जरा सा ऐसा होता है, बट अदरवाइज पिक्चर देखते समय कभी होता है क्या ऐसा? हाँ, नहीं होता है ना. 12th फेल वगैरह देखने को गए तो नहीं होता है, बट इधर लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरिस. उसके अलावा लेंस होता है. लेंस में भी देर आर फाइबर्स. ऐसे उधर ना ऐसे का क्लासिकल अरेंजमेंट होता है लेंस के फाइबर्स का. ऐसे एक आगे के साइड पे वाई और पीछे के साइड पे ऐसे इन्वर्टेड वाई, इसमें से ऐसे फाइबर्स जाते हैं. सच नाइस अरेंजमेंट दैट मेक्स द लेंस अगेन ट्रांसपेरेंट. तो लेंस का ऐसा है, देयर इज अ लेंस एपिथेलियम. ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो लेंस के फाइबर्स जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, दे आर पुश टुवर्ड्स द सेंटर. और ओल्ड एज में पहुंचते पहुंचते सारे डेड फाइबर्स यहाँ पे आके कैटरैक्ट फॉर्म करते हैं. फिर दिखने का कम हो जाता है, बंद हो जाता है. फिर ऑपरेशन करके कैटरैक्ट निकाला तो आदमी वापस ठीक हो जाता है. ओके, सो ये है बाकी के कुछ लेयर्स, बट मेन टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर. वन इज क्लेरा and other is one is cornea and other is retina. Thank you so much.